इंडस्ट्री है उसे किस तरह से आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं, उस बारे में भी अगर बता सकते। मैं लुक सेंटर। So, as you all know, GSSC is a global stainless steel expo, and we have this dedicated event to serve the stainless steel sector, bring all the stakeholders together and increase, bring them together to see how they can really increase their business, how they can interact with global and national user industry, and also how can we impart knowledge. So we feel coming together of ISDA and Virgo is very, very significant, because together we will be using ISDA's expertise as the industry leader, as an apex body, and their expertise to bring it together, and also our experience of organizing exhibition, which will together help the stainless steel industry to expand. See, one of the reasons for partnering with Virgo is capable. There are strengths and weaknesses of someone. So Virgo is capable of creating an infrastructure for people to participate. Our strength is to curate that with our knowledge, and we can bring international players here, because we are the official representative of Nickel Institute, Molybdenum International Molybdenum Association. We are a member of World Stainless, and you would have seen our NSE list, where Tim Collins is also a member of this NSE, who is the World Stainless Secretary General. So we wanted to bring, and not only that, the inroads into the government, because government normally shakes hands with a non-profit body or industry body. So we wanted to encash that particular opportunity through ISDA, where we have got the support of Ministry of Steel, our parent ministry. We got the support of Commerce. Commerce is also confirmed, since their confirmation came just the same, so we could print their logo on that. We have got a confirmation from MSME Ministry. We are waiting confirmation from Railways. We are waiting confirmation from Delhi Metro. We are waiting confirmation from PWD and Urban Affairs. So we wanted to make it a total government supported event because we'll be calling all the user industry like NHAI, who are the major users like Railways, MMRDA, MADA, then all these people will be coming for this exhibition as a user industry. So that is our plan. And not only that, we also planning to bring overseas buyers through EEPC, and we are planning to do a reverse buyer seller meet on the proposed event. So we are doing our efforts, and the rest we leave it to the Almighty, how it shapes up. This India is the second producer of steel, as we know, right? No, we are the third largest producer of steel. सर थोड़ा हिंदी में बता देंगे कि जो बताया था कि कार्यक्रम हम जो आज कर रहे हैं, ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य बॉडी साथ में आ रही है, और देश में जिस तरह से स्टेनलेस स्टील की जो खपत हो रही है उसको बढ़ाने की तरफ क्या उद्देश्य है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप जोर डालेंगे सर। देखिए जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि दो दिमाग हमेशा एक दिमाग से बहुत अच्छी होती है और ताकतवर होती है। तो वर्गो का अपना एक क्रेडेंशियल्स है और स्ट्रेंथ है, और ISDA का अपना एक क्रेडेंशियल्स है और स्ट्रेंथ है। तो इन दोनों को हमने साथ में लिया उसको और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि वर्गो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर सकती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है मेंबर्स के लिए। हम उनको यूज़र्स लेके आके देख सकते हैं, हम उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स से जो फॉरेनर्स हैं उनसे उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम लेके आके दे सकते हैं कि हमको क्या करना है। हम अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस में स्टेनलेस स्टील को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसका एक उद्देश्य है। और दूसरा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर स्टेनलेस स्टील यूज़ ही नहीं हो रहा है, उन लोगों को पता नहीं कि स्टेनलेस स्टील यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस न्यू एप्लीकेशंस को हम एक्सप्लोर करें और उसमें स्टेनलेस स्टील का ग्रोथ बढ़ाएं। सर देश में जो आप बोल रहे हैं एक लॉस हो रहा है कोरोजन के चलते, उसको लेके क्या नीति बनानी चाहिए सरकार को? देखिए, अगर आपने टेनिस फॉलो किया तो उसमें दो टर्म यूज़ करते हैं, एक अनफोर्स्ड एरर और एक फोर्स्ड एरर। अनफोर्स्ड एरर जो है वो अपने हाथ में नहीं है, जैसे आपका हो गया भूकंप हो गया,
साइक्लोन हो गया जिसके चलते मैंने कोई गिर गया, तो वो अपने हाथ में नहीं है। जो भी डैमेज होगा उसके थ्रू से जहाँ डैमेज होगा वो अपने हाथ में नहीं है। बट जो अपने हाथ में है, जिसको हम सही कर सकते हैं, वो है कोरोजन। क्योंकि कोरोजन क्यों होता है? कोरोजन अगर आप कोस्टल एरिया में नॉर्मल माइल्ड स्टील को यूज़ करेंगे तो कोरोजन होगा। कोरोजन के लिए कोरोजन प्रोटेक्शन जो स्टेनलेस स्टील है उसको यूज़ करना चाहिए उस एरिया में। सो यूसेज ऑफ मटेरियल बहुत ही अनिवार्य है इस कोरोजन को बचाने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए। और दूसरी बात यह है कि 12 लाख करोड़ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट बजट अलॉटेड हुआ है और 12 लाख करोड़ अपना कोरोजन लॉस है। तो ये ऐसा हो गया कि बैलेंस शीट एक जगह एसेट हो गया, एक जगह लायबिलिटी हो गया पूरा। हाँ, अनीता जी ये बताएंगे कि ये ISDA के साथ GSSC साथ में आ रहे हैं, तो उससे ये फ्रेमवर्क में क्या बनेगा कि दोनों के ये बॉडीज़ के साथ में आने में GSSC को देश में किस तरह के जो यूज़र्स हैं, जो कंपनियां हैं, उसको लाने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। GSSC ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अभी हमको प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना है और वो प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन इसलिए करने के लिए जो ISDA का जो सपोर्ट हमको मिला है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगा। उनका जो मार्केट इंटेलिजेंस और उनका जो लीडरशिप और इंफॉर्मेशन नॉलेज जो उनके पास है कि ग्लोबली क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है और इंडिया में क्या लैकिंग है, इंडिया को स्टेनलेस स्टील का कंजप्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो इंटेलिजेंस जब आएगा हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आने के लिए, इवन गवर्नमेंट को साथ में लेके आएंगे। इंटरनेशनली अगर इतने सारे लोग अगर इंडिया में आएंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हैं, तो गवर्नमेंट को भी एक फोरम मिलेगा कि हमको भी एक फोरम मिलेगा, गवर्नमेंट को लेके आके उनसे बात कर सकते हैं। सो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हम दोनों अपने अपने एक्सपर्टीज लेके आके करेंगे। पर कैपिटा खपत बढ़ाने की तरफ ये एक कदम है। बिल्कुल है, हम लोग साथ में मिलके सारे इंडस्ट्री, जैसे सर ने बोला अभी कि जो सेक्टर यूज़ नहीं कर रहा है उनके लिए हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स करेंगे, वहाँ जाके अंडरस्टैंड करेंगे। GSSC एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट हम साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जहाँ पे हम कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्टिविटी चाहिए होगा, जो सेक्टर में जाके उसका इन्फॉर्मेशन देना होगा या एक्टिविटी करना होगा, वो हम लोग साथ में करेंगे। एक आखिरी सवाल, सरकार से क्या चाह रहे हैं? आखिरी सवाल, सरकार से आप क्या चाहते हैं लास्ट? सरकार इस सेक्टर में गवर्नमेंट से क्या मदद? सरकार से क्या चाहते? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे ताकि जो उनका एस्पिरेशंस है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये सब तभी मुमकिन है जब आप डोमेस्टिक प्लेयर को बढ़ावा दोगे और डोमेस्टिक प्लेयर को फॉरेन इंपोर्ट से बचाओगे। सर को ला रहा हूँ, एक ही मिनट। थैंक यू। डिप्टी CEO माडा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सर आज की ये पार्टनरशिप के आज की पार्टनरशिप जो हुई है वो कितना योगदान देगी स्टील इंडस्ट्री में, उसके बारे में? स्टील इंडस्ट्री का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ से मैं आता हूँ अभी माडा, हम 2,05,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का अभी टेंडर किया है। उसमें सीमेंट स्टील एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो उसका यूज़ होगा। अभी आज के मीटिंग के बाद इंडस्ट्री सेक्टर ने ये थोड़ा प्लान करना चाहिए कि उनका स्टेनलेस स्टील का यूज़ इस सारे कंस्ट्रक्शन में कैसे होगा, तो उस बारे में इनका कोई प्लेटफॉर्म तैयार होगा। गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसका डिस्कशन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील का यूज़ कैसे हो सकता है इसके बारे में कोशिश होगी। सर जैसे कि आज बताया गया कि काफ़ी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है और वो लाने से काफ़ी कॉस्ट कम होएगा और इंडिया में स्टेनलेस स्टील या सीमेंट या इस सारे मटेरियल में जो कंपटीशन होता है बाहर के कंपनी के साथ होता है, चाइना या बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट कम होता है, इसलिए उनका इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होता है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी अभी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन है इसको हम हमारे जो वेंडर्स है उसको एट पार कैसे लाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन होगा इस सारे इंडस्ट्रीज़ को कैसे सपोर्ट दिया जाए और कैसे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो, उसके बारे में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हो रही है और उसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा।
है